Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter The Earth in the Solar System and we are discussing solar system. Solar system, as I told you, is a family of sun in which the head is sun is the head. Sun is at the center of this solar family, and other members of this solar family are that planets, then their satellites, then asteroids and meteoroids. Okay, and we have discussed about sun. Sun, as we know, sun is a star which has its own heat and light, and sun is the nearest star from the earth. That is why earth receives its heat and light from sun only. Sun is the ultimate source of heat and light for the earth, and the sun is very hot, it's very big, but it is very though it is the nearest star, still it is very far away from the earth. That is why we do not feel so much heat. The heat which is there at the sun is very high, but we feel lesser heat because of the distance. And as I told you, the distance between the earth and the sun is 150 million kilometers around. It is about 150 million kilometers. Okay, and now we are discussing about the planets. The planets, the word planet is derived from a Greek word plantai, which means wanderer. We have discussed it. So planet is that celestial body which wanders, which moves. Where does it move? It moves around the sun. Okay, and it moves around the sun on a fixed path, which is called orbit. And we have also seen that there are 8 planets in the solar system. In our solar system, there are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So it is important for you to memorize these planets in order. Okay, so how will you memorize? Many times students get confused. So there is a trick to memorize this. Okay, and what is the trick? The trick is you just remember a sentence. The sentence is my very efficient mother, my very, I am writing it with capital letter because there is some reason. My very efficient mother, okay, just served me, just served my very efficient mother just served us, हम लोगों को, just served us nuts. ठीक है. हाँ, my mother कैसी mother है? Efficient mother. Not only efficient, she is very efficient. So my very efficient mother just served us nuts. ठीक है. जो बहुत ही efficient mother है, उन्होंने अभी just हमें nuts सर्व किया है, nuts दिया है खाने के लिए. Okay, now you just focus on the first letter of all these words. My, the first letter is M. Very, the first letter is V. Efficient, E. The first letter is E. Mother, the first letter is M. Just, it's J. Serve, it's S. Us, it's U. And nuts, it's N. Now you can see that you can connect with this, है ना? Like my में जो M जो first letter है, this is same Mercury, है ना? So this is my Venus,
वी से वीनस है, आपका वेरी जो हो रहा है स्टार्ट वो भी वी से हो रहा है, माई वेरी एफिशिएंट, ई फॉर एफिशिएंट, ई फॉर अर्थ, देन अगेन मदर, माई वेरी एफिशिएंट, एम फॉर मदर, एम फॉर मार्स, जे जस्ट, जे फॉर जुपिटर, सैटर्न का क्या होगा, सर्व्ड, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड, एस फॉर सर्व्ड, एस फॉर सैटर्न, अस, यू फॉर अस, यू फॉर यूरेनस, okay, and what mother has served, nuts, so and for nuts and for Neptune. So if you memorize these this sentence, then you can remember the order of the planets. There will not be any kind of mistake or confusion, so do accordingly. Okay, and now we see that yes, as I told you, these planets always move around the sun in a fixed path. ऐसा नहीं कि कोई कैसे भी कभी भी कहीं से भी घूम लेगा, उनका एक पाथ है, वो फिक्स होता है, और ये पाथ जो होता है ये एलिप्टिकल होता है. अगर उसके शेप को हम देखें तो द शेप ऑफ दिस पाथ इज एलिप्टिकल एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. So this is sun and the path on which the planet moves around the earth is elliptical. You can see this is the elliptical shape, है ना, यही elliptical shape इसी को हम कहते हैं. और एक पार्टिकुलर पाथ में ही ये मूव करते हैं, ऐसा नहीं होगा कहीं से भी वो करे, पार्टिकुलर पाथ होता है और इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट. ओके, नाउ एज वी हैव सीन, जो सबसे नियरेस्ट है अर्थ के वो कौन सा प्लैनेट है, दैट इज मरकरी, है ना. मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट. और सेकंड में कौन है मरकरी के बाद, जैसे वीनस है ना, फिर थर्ड में अर्थ है. ऐसे ही कर करके ये सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. ठीक है, अब एक बात आपको ये भी समझना है यहाँ पर कि जो डिफरेंट जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका स्पीड भी डिफरेंट है. पाथ तो डिफरेंट है ही, है ना, और उनका स्पीड भी डिफरेंट है. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कोई वैसे ही मूव करता है जैसे अर्थ जितने स्पीड से मूव करता है. ओके, इसमें हम देखेंगे कि हर किसी के जो अपने अपने एक्सिस पे जो वो रोटेट करते हैं और सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, उसका जो स्पीड है वो डिफरेंट है, डिस्टेंस भी डिफरेंट है. तो हर किसी को इस पूरे अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में डिफरेंट टाइम लगता है. जैसे अगर हम देखें मरकरी को, मरकरी टेक्स ओनली 88 days to complete one revolution around the sun. This is the time taken by मरकरी. ओके, मरकरी को 88 डेज लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में. ओके, और इसके अलावा जो वीनस है, वीनस के बारे में एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड वो ये है कि वीनस इज कॉल्ड द अर्थ्स ट्विन. क्यों उसको अर्थ्स का ट्विन कहा जाता है? जैसे जुड़वा भाई बहन होते हैं ना, जिनके बहुत सारे क्वालिटीज़ मिलते हैं. ट्विन्स जब होते हैं कोई भी भाई या बहन, तो उनके बहुत सारे जो ट्रेट्स हैं वो आपस में मिलते हैं. तो इन द सिमिलर वे अगर हम वीनस और अर्थ को देखें तो इनमें भी बहुत सारी हमें सिमिलैरिटी मिलती है. जैसे इनके शेप और साइज़ को लेकर ये बहुत कुछ एक मिलते जुलते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई द वीनस इज कॉल्ड अर्थ्स ट्विन. ठीक है, और
Yes, Venus is called Earth's twin. Why it is called Earth's twin? Because of there is similarity in the shape and size of both the planets. ठीक है? Similarity in the shape and size of both the planets. ओके, दोनों planets के शेप और साइज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है. ओके, एंड नाउ वी सी कि जो I told you earlier it was considered that there are 9 planets. ठीक है, पहले ये माना जाता था कि 9 planets है. बहुत अभी हाल फिलहाल तक अगस्त 2006 के पहले तक it was believed that there are 9 planets, but 2006 के अगस्त से 8 ही माना जाता है, क्योंकि जो 9th planet है that is Pluto, जो पहले माना जाता था अब नहीं है. तो जो 9th planet है अब उसको नहीं माना जाता है planet. ठीक है, प्लूटो जो है वो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्लैनेट. ओके, एंड 2003 में एक मीटिंग हुई थी एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की. जो मीटिंग हुई थी उसमें यही डिसाइड किया गया था कि जो प्लूटो है उसको हम प्लैनेट नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट मान सकते हैं. ड्वार्फ क्या हुआ? जैसे जो जिनकी हाइट कम होती है लोगों की, बहुत कम, बहुत पूरी तरह से जिनका फिजिकल ग्रोथ तो हो जाता है बट उसके अकॉर्डिंगली हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, उनको हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ कहते हैं. तो उसी तरह से ये डिसाइड किया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में कि प्लूटो शुड बी कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट. ठीक है, प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है, इट्स नॉट अ प्लैनेट. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैनेट. अब हम लोग अपने प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, अर्थ के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशंस लेंगे. ओके, as we have seen, Earth is the third nearest planet to the Sun, है ना. अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट है. मरकरी, वीनस एंड देन अर्थ. ओके, एंड इट इज़ द अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. 5th लार्जेस्ट है, 4 और जो है वो इससे बड़े हैं. ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. ओके, इट इज़ थर्ड नियरेस्ट to the Sun. Okay, and it is 5th largest in size. साइज भी ये 5th लार्जेस्ट है. और अगर अर्थ के शेप को हम देखें तो अर्थ कैसा है? द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं है ये. दिस इज नॉट द शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो शेप है वो क्या है कि पोल्स पे, वो जो दोनों जो पोल्स है ना, इस पे वो स्लाइटली फ्लैटेंड है, एकदम बिल्कुल जो गोल कोई राउंड फिगर है उसको दोनों पोल्स पे, दोनों जो उसके एजेस हैं, ऊपर वाला एज तो नहीं होता है सर्कल में, बट जो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन उसको अगर दबा दिया जाए तो जो शेप बनेगा वो शेप होता है अर्थ का. तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, तो दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ. और अर्थ के इस शेप को हम क्या कहते हैं? दिस शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोइड.
Okay, this shape of earth is called geoid. And what is the meaning of geoid? The meaning of geoid is earth like shape. जिसका भी अर्थ लाइक शेप होगा उसको हम geoid कहेंगे, अर्थ के शेप को हम geoid कहेंगे. Okay, so this is the shape of the earth. And now we see that you all are aware that in the whole solar system it is only on earth where life exists, है ना. Though there are so many stories, we don't know what is truth, but अभी तक कोई भी साइंटिफिकली नहीं प्रूव हुआ है कि अदर देन अर्थ कहीं और पे लाइफ है. एलियंस की बातें होती हैं, एलियंस के बारे में सो मेनी स्टोरीज आर देयर, बट दीज आर ऑल विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ. वी डोंट हैव एनी scientific proof about life, about the existence of life anywhere other than earth. It is only on earth where life exists, ठीक है, where life is found. And why it is only on earth where life exists? Because the earth provides favorable conditions to support life, है ना. In order to live we need some important conditions, like it should not be too hot or it should not be too cold. If the temperature is too cold or if it is too hot, then we will not be able to survive. The human beings will not be able to survive. So what we find that the temperature of the earth is neither too hot nor too cold. This is favorable condition for life, है ना. This is what we call favorable condition for life. Not only this, earth has water and we cannot survive without water. In our body 70% of our body is made up of water only, है ना. We cannot live without water. So water is found on earth. Okay, then air is also vital for us. We cannot live without air. अगर हम अपनी नाक बंद कर ले तो थोड़ी ही देर में नाक और मुंह दोनों से अगर सांस नहीं लेते हैं, बंद करते हैं, तो वी विल बी सफोकेटेड. हम मर जाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इवन फॉर फ्यू मिनट्स, है ना. अगर थोड़ी मिनट्स के लिए भी हमारे अंदर एयर नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, है ना. तो अर्थ जो है ये सारा कुछ हमें प्रोवाइड कर रहा है. अर्थ इज प्रोवाइडिंग अस वाटर, अर्थ इज प्रोवाइडिंग अस एयर, अर्थ, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नीदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट. सो दीज आर फेवरेबल conditions, these are essential conditions for life, and this is the reason why life is there, है ना. एयर में बहुत सारे लाइफ सपोर्टिंग गैसेस होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, है ना. ऑक्सीजन के बिना हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं. So earth is, this is why earth is called a unique planet. Earth is a unique planet. In all the planets, in all the 8 planets, the earth is the unique planet. Why? Because it has life. It provides favorable conditions for life, ठीक है. It has water, it has air, its temperature is also neither too hot nor too cold. Okay. So if we see earth, you know, our earth, the 2/3 surface of the earth is covered with water, है ना. this is earth, है ना. इस अर्थ का जो 2/3 पोर्शन है, यानी कि अगर हम अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 3 इक्वल पार्ट्स, है ना. अगर हम अर्थ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि 2 पार्ट जो है वो क्या है, 2 पार्ट्स ऑफ दिस इज वाटर, है ना. और ये जो है ये लैंड है, 1/3 पार्ट. दिस इज 1/3, है ना. दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2/3. तो 2/3 वाटर है और 1/3 लैंड है. ओके, एंड दैट इज वाई इफ वी सी अर्थ फ्रॉम द स्पेस, बिल्कुल ऊपर से अगर हम स्पेस से देखें, जहाँ पर कि अभी आप लोग पढ़ेंगे स्पेस क्या होता है, जहाँ पर एयर नहीं होता है,
अर्थ के चारों तरफ एयर होता है, जब हम बहुत ऊपर जाते हैं तो एयर ख़त्म हो जाता है और तब वो जो जगह होती है उसको हम स्पेस कहते हैं। तो अगर हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें ब्लू दिखता है। क्यों अर्थ हमें ब्लू दिखता है? बिकॉज 2/3 पोर्शन of the earth is covered with water and the color of water is blue. That is why the whole earth seems blue from the space. That is why it is also called blue planet. Okay, it's unique planet because it provides favorable conditions for life. It's blue planet because 2/3 portion of its surface is covered by water, and if we see it from the space it looks blue. Okay, so this is all about earth, and now we will see moon. मून के बारे में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हम लोगों ने काफ़ी कुछ मून के बारे में पहले हम लोग देख लिए हैं, है ना। तो मून क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मून? मून इज अ celestial body which shines in the night sky and it is a satellite of the earth. Satellite, as I told you earlier also, that celestial body which moves around the earth is called satellite. है ना। तो मून इज आर नेचुरल सैटेलाइट। It is the only सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये एक ही सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है, और वो है मून, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। अब अगर मून को हम देखें कि मून की क्या साइज़ है, तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। यानी कि अगर अर्थ का डायमीटर ये है, डायमीटर यू नो सर्कल जो होता है उसका ये डायमीटर होता है, दिस डिस्टेंस इज डायमीटर। और अगर ये सपोज करें अगर 100 मीटर्स है, वी आर जस्ट एज्यूमिंग, है ना, इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 100 मीटर देन व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द मून, बिकॉज वी हैव सीन दैट मून्स द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द सन। तो अगर सन का 100 है तो 100 का 1/4, है ना। we will divide 100 by 4 and we will get 25. So 25 meter. So this is the proportion, है ना। अर्थ से वो इतना छोटा है मून, अर्थ से छोटा है, 1/4 है उसके साइज का। ओके, एंड ये हमको बड़ा दिखता है। जैसे जब हम रात में अगर जाएंगे, वी सी द नाइट स्काई, तो सन मून हमें बड़ा दिखेगा, है ना। बट जैसे सन से अगर हम सन और मून को कंपैरिजन करें तो हमें दोनों का साइज सेम लगता है, बट एक्चुअली मून सन से बहुत छोटा है, बट इट सीम्स बिग, इट अपीयर्स बिग। व्हाई? बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स जो बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। सन भी हमसे बहुत दूर है, हालांकि सन इज़ द नियरेस्ट स्टार, स्टिल सन इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अगर हम सन और मून के बीच में कंपैरिजन करें तो मून हमसे बहुत पास है। अगर मून और सन के बीच, मून और अर्थ के बीच की जो दूरी है दैट इज़ 3,84,400 किलोमीटर्स। 3,84,400 किलोमीटर्स। सो यू कैन कंपेयर, जब हमने देखा था सन से अर्थ की दूरी कितनी है, दैट वाज 150 मिलियन किलोमीटर्स, and here it's 3,84,400 kilometers. So you can understand that the moon is comparatively near to us than the sun, है ना, और इसलिए मून हमें बड़ा दिखता है।
अदर सन्स की तुलना में, अदर स्टार्स के कंपैरिजन में मून लुक्स बिगर, है ना। एंड मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और मून को अर्थ का ये चक्कर लगाने में करीब करीब 27 डेज लगते हैं, लगभग 27 डेज। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और हर समय हर सेलेस्टियल बॉडी जो है वो दो तरह का उसका, हर सेलेस्टियल बॉडी नहीं, मून है, जैसे प्लैनेट्स है जिनके बारे में हम पढ़ें, तो मून भी उसी तरह से अर्थ के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पे भी वो घूमता रहता है, दोनों चीज़ होती रहती है, ठीक है। मून जो है, मून इट मूव्स अराउंड द सन, है ना, अराउंड द अर्थ, बीच में अर्थ है और इसके चारों तरफ मून जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। और जो मून घूमता है इसके चारों तरफ, तो साथ साथ मून अपने चारों तरफ भी घूमता है, ठीक है। जैसे अपने चारों तरफ कैसे हुआ, ये लाइक दिस इज मून, ऐसे 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 मून ऐसे ऐसे घूमते हुए, ऐसे ऐसे घूमते हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते हुए मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर सो दैट आपको समझ में आ जाए। मून अपने चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और आगे भी बढ़ता जाता है, अपने चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और आगे भी बढ़ता जाता है, अपने चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और आगे भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है और अपने भी चारों तरफ घूमता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि द टाइम टेकन बाय मून टू मेक one revolution around the earth is 27 days. Okay, moon takes 27 days to move around the earth, and it takes exactly the same time to complete one spin. अपना जो स्पिन है, ठीक है, अपने जो चारों तरफ घूम रहा है उसमें भी उसको 27 डेज लगते हैं, और अर्थ के चारों तरफ घूमने में भी उसको 27 डेज लगते हैं। ओके, यहाँ पर जो मून है वो अपने भी चारों तरफ घूम रहा है। सपोज ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको कि हम समझ रहे हैं कि ये इसकी एक्सिस है जिससे ये घूम रहा है ऐसे करके, है ना, और वो अर्थ के भी चारों तरफ घूम रहा है, दोनों में उसको सेम टाइम लगता है। इसी कारण से क्या होता है कि मून का जो है वो एक ही साइड हमको विजिबल होता है, बिकॉज जैसे जैसे वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है वो अपने चारों तरफ भी घूमता जा रहा है और दोनों में उसको सेम टाइम लग रहा है। तो इसी रीज़न से वी आर एबल टू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। हमें मून का दूसरा साइड कभी भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो दोनों का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों का टाइम सेम है। जितनी देर में वो अपने चारों तरफ घूमता है उतनी ही देर में वो अर्थ के भी चारों तरफ घूमता है, ठीक है। एंड हियर वी सी दैट मून में ऐसे कोई भी कंडीशंस नहीं है जिससे कि वहाँ पर लाइफ हो सके। नो फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ इज देयर ऑन दी मून। इट हैज़ नो वाटर नहीं है, एयर भी नहीं है ना। वहाँ पर जब भी जो कोई भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनको अपनी ऑक्सीजन लेकर जानी होती है, बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे। हाँ, यहाँ पर हमें माउंटेन्स दिखते हैं, प्लेन्स भी हैं और गड्ढे भी हैं, इसके सरफेस पे डिप्रेशंस हैं। और जैसे आपको जब मून को आप देखते हैं रात में तो वो पूरा ब्राइट नहीं दिखता है, उस पर कुछ शैडो दिखाई देते हैं हमें, है ना। कुछ शैडो जो दिखाई देते हैं वो इसी कारण से, जो मून का सरफेस है वो प्लेन नहीं है, कहीं पर वो माउंटेन है, कहीं पर डिप्रेशन है, गड्ढे हैं, तो उसी वजह से जो हमें एक धब्बा जैसा जिसको कहते हैं ना, स्पॉट नज़र आता है। ये स्पॉट इसलिए नज़र आता है जो उस पे उसके सरफेस पे जो फिजिकल फीचर्स हैं, दैट इज़ वाई इट्स सरफेस डज नॉट सीम प्लेन, है ना। तो जब आप फुल मून होगा तब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये समझ में आएगा। तो इसके अलावे एज आई टोल्ड यू इन द क्लास ऑल्सो कि मून तो नेचुरल सैटेलाइट है। इस नेचुरल सैटेलाइट के अलावे बहुत सारे
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं जो कि इंसान भेजता है स्पेस में, और जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे पर्पसेस से भेजा जाता है। रॉकेट से ये जो जाते हैं सैटेलाइट, ये रॉकेट से जाते हैं, और उसमें जैसे हमारे वेदर फोरकास्ट जो होता है वो इन्हीं सैटेलाइट्स की हेल्प से होता है। फिर जो हम लोग टीवी में जो आजकल टाटा स्काई है, इनका अपना सैटेलाइट वहाँ गया हुआ है अर्थ के चारों तरफ, उसी से सिग्नल मिलता है। जैसे कि हम टीवी देख पाते हैं, हमारे मोबाइल में जो हम कहते हैं सिग्नल नहीं मिल रहा है, कहाँ से सिग्नल मिल रहा है, उसी सैटेलाइट से जो सिग्नल लेती है, वो नीचे जो छतरी उसकी लगी होती है वो सिग्नल लेती है, फिर वहाँ से सिग्नल जो है वो हमें मिलता है। तो इस तरह से इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, है ना, जिसको कि इंसान ने बनाया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो कि जैसे इंडिया ने भी अपने सैटेलाइट भेजे हैं। इनसेट है, IRS है, एजुसेट है। ऑल दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो कि स्पेशल पर्पस से स्पेस में भेजे गए हैं, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। So this is all for today, and we will continue this chapter in the next class.